बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਭਚਿੰਤਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, लेकिन पीपीएससी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਿਓਰੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ੂਰੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਆਸਕ ਅਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਟਵਿਸਟ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 4 ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 5 ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ 6 ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਗਏ? ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 1 ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 4। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 4 ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੋਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 4 ਹੈ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਔਰ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਓ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 4 ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 3 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ 3 ਤੇ 2 ਦੀ, ਤਾਂ 3 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ 2 100% ਇੱਕਦਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 2 3 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਤੋਂ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 1 ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਤਾਂ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 4, ਜਰਾ ਟ੍ਰਿਕ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ 2 ਦੋਸਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਿਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚਲਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਇਨਚਲਦੀ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਇਕੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, मैं इहनूं सुदृढ़ तरीके नाल थोड़ा जिहा लिख लेना ताकि मैनूं बेहतर होएगा कि तुहानूं मैं इहदा सैटिस्फैक्शन आंसर दे सकां। देखो जी, मैं इत्थे लिखांगा भी D ग्रेटर दैन इज इक्वल टू M है। फिर ये मैनूं कह रहा है कि D ग्रेटर दैन इज इक्वल टू की है, D ग्रेटर दैन इज इक्वल टू की है, R है। मैं इत्थे R लिख लांगा, मैनूं उल्टा लिखना पएगा पर मैं लिखांगा जरूर क्योंकि मैं मेरे स्टेटमेंट के मुताबिक चलांगा। हुण गल कह रहा है भी D है वो पक्की गल, किस तो D तो वड्डा कौन है, D तो वड्डा कौन है, Z है। चाहे तुसीं जिधर मर्जी लिख लो कोई फर्क नहीं पएगा। हुण गल आउंदी R दी, बई R वड्डा है किस नालों, C नालों। आ मेरे कोल एक स्टेटमेंट बन गया। हुण सवाल मेरा कहंदा है भी Z है जिहड़ा ग्रेटर दैन किस तो है, C तो है, तो मैं इसनूं इस तरीके नाल भी लिख सकदा है ना। मैं थल्ले आंसरां ते नहीं जांदा, जरा मैं इस तरीके नाल लिख सकदा, मैं इसनूं इत्थे लिखांगा, ठीक है गुरु जी। जरा समझो, इत्थे मैं लिखांगा कि C R हो गया, फिर मैं इत्थे लिखांगा भी R लेस देन टू D है और D तो वड्डा कौन है, Z है। हुण देखो जी, सब दे सिंबल किस वाल है, Z वाल है, तो एक नंबर चीज़ बिल्कुल 7% सच होएगी। जे तुहानूं कहा जाए कि C, देखो हुण तुहानूं पेपर वाला अगर मैं एग्जामिनर हुंदा तो मैं तुहानूं इस तरीके नाल फसाउणा सीगा भी दसो, बिल्कुल गलत हुंदा। हुण इह कहंदा भी C ग्रेटर मतलब C तो वड्डा Z है, तो बिल्कुल सच है जी। क्यों है, क्योंकि सब दे मूँह किहदे वाल खुले ने, Z वाल खुले ने, तो इस करके थोड़ा पहला 101% सच गल होएगी। प्यारे दोस्तों, दूजा पुछदा है भी M है ग्रेटर दैन इज इक्वल टू A हो C होएगा। हुण देखो तुसीं जरा यही पक्ष तुसीं मैं समझाउणा चाह रहा है सारे मेरे विद्वान मित्रां नूं, इहदा मूँह ते इहदा मूँह आमने सामने भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए। जो टक्करां हो गईयां तो इहदा नतीजा निकलना पॉसीबल नहीं है, इस करके पहला सही होएगा। तो हुण तुसीं देखो हेठां कनकलूजन च की है, दूजा फाल्स है तो पहला ट्रू है। मेरी गल समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों? मेरा कंसैप्ट इन्ना बेहतर तरीके नाल क्लीयर है तो मैं उही चीज़ तुहाडे नाल सांझी करांगा कि तुसीं कदी भी इसनूं गलत कर ही नहीं सकते हो। मैं इस करके थोड़े ना झूठा वादा नहीं करता कि रीजनिंग और मैथमैटिक्स दे विचों मैं सिंगल चीज़ नहीं कट्टण देवांगा। हुण तुसीं अगर उसनूं नहीं कर पाओगे तो फिर तुहाडी गलती होएगी। चलो जी, हुण एक सवाल होर है, जरा यही तो सवाल आई थिंक मैनूं लग, हाँ एक सवाल होर है, मैनूं थोड़ी जी पिक्चर नूं वड्डी कर लैण दो ताकि तुसीं सारे जने समझ सकोगे। चलो जी, मैनूं थोड़ा जिहा होर फैला देण दो वड्डा करके, मैनूं स्क्रीन ते पूरा जूम आलो जी पूरा करता रज के, ठीक है। हुण क्लीयर, जरा आपां इहदे आंसर लुको दिंने आ। आलो जी, हुण आपां करदे हैं, इत्थे मैं लिखिया है N है और इत्थे मैं लिखिया है N लेस देन इज इक्वल टू I है। ये फिर कहंदा भी I तो वड्डा कौन है, Q है, तो Q लेस देन इज इक्वल टू S आ बनाता जी मैं। हुण ये कहंदा भी S ग्रेटर देन इज इक्वल टू N है, S ग्रेटर देन इज इक्वल टू N है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत होएगा। बई क्यों होएगा? अगर गुरु जी ये चीज़ सारे बच्चे ख्याल रखो, मेरी गल दा गौर रखना इस चीज़ का। अगर इत्थे इस तरीके का सिंबल हुंदा, इस तरीके का निशान हुंदा तो आप कह सकते कि पहली गल बिल्कुल सच है। इट मीनस ये साडे कोले अकॉर्डिंग टू आवर कनकलूजन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आप ये गल बिल्कुल पूर्ण तौर पर यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि जो चीज़ सानू इत्थे कही जा रही भी N, देखो N तो वड्डा कौन है या बराबर ए वाला है I तो 7% कौन वड्डा है, Q है, मतलब I का रोल खत्म हो गया है। हुण Q तो वड्डा या बराबर कौन हो सकता है, S। तो जे मैं N की गल करांगा, N तो I तो ही छोटा है, मतलब कि Q तो भी छोटा हर 7% है, तो वड्डा तो हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो 7% एकदम ठीक है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूजे स्टेटमेंट चो कहता है कि S वड्डा होएगा I तो। देखो जी, S वड्डा होएगा I तो बिल्कुल इस स्टेटमेंट की बिहाफ ते भी मैं तुहानूं कह सकदा है कि गल मेरी किते न किते पूर्ण तौर पर एकदम ये चीज़ां भिड़नगियां, ठीक है। ये चीज़ां की होणगियां थोड़ियां भिड़नगियां। हालांकि थोड़ा जिहा इत्थे मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि कनकलूजन तो लैके बच्चा परेशान होया होएगा, तो ये चीज़ां मैं तुहानूं क्लीयर करा दिना है, ठीक है। समझ पाए सब बच्चे, सब नूं समझ आ गया ना, ठीक है जी। दोनों चीज़ां ये देखो, ये कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक गल इस करके हो गया कि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है जो ये चीज़ इत्थे शायद तक साडे तो ही गलत होगी। ये चीज़ इदां होनी चाहिए सी, ठीक है, इदां होनी चाहिए सी ना, अकॉर्डिंग टू दिस तो अकॉर्डिंग टू दिस होनी चाहिए सी। इस करके इसने इत्थे दिता है, तो आपां जो चीज़ ये दिती है इस बिहाफ ते तो ये बिल्कुल सही है,
इस बिहाव ते तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन अगर इत्थे आ चीज़ आउंदी तो तदे तुसी फाल्स कह सकते सी बिल्कुल है। तो दूजी गल की पूछी सी उन्हें कि आई तो वड्डा एस है, तो दूजी गल बिल्कुल 7% सही है, तो यदा ऑप्शन नंबर 2 बनेगा, न कि पहला बनेगा। क्लियर है ना, 2 का मतलब ये हो गया कि थोड़े को ट्रू टूजा सही है। क्लियर है, चलो जी गां वाले ते आ जाओ। गां वाले ते आपां करते हैं, तो इसने लिखा सीगा कि u बराबर t है तो t तो वड्डा n है, और फिर गल आ रही है कि बई इथों आ करके इदां आ जाएगा। हुण देखो भी s ग्रेटर दैन किस तो है, n तो डेफिनेटली आपां गल कह सकते हैं कि s ग्रेटर दैन n तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तुसीं खुद आंसर दो। हुण s वड्डा है किस तो, t तो। देखो t की गल करते हैं इत्थे है, हुण टी तो वड्डा आपां नहीं कह सकते बई, टी तो वड्डा नहीं कह सकते क्योंकि टी के बराबर भी हो सकता है, लेकिन साडे कोले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रू हो सकता है, सैकेंड साडे कोले गलत होएगा, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सबनों समझ आ गया, सारिਆਂ समझ आया कि नहीं आया, कंसैप्ट ते बिल्कुल पकड़ होनी लाजमी है। ठीक है, थोड़ा जिहा किते ना किते इत्थे स्टेटमेंट दे विच थोड़ा जिहा मैनूं इहदे विच लग्गिया सी, बल्कि ऑप्शन दे विच है देयर इज नो एनी प्रोविजन टू मेक दिस रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक सवाल किसी विद्वान मित्र ने होर पाया, इस मित्र की गल नूं भी आपां मद्देनजर रखते हुए जे ग्रेटर दैन क्यू है और क्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल एल है, एल बराबर एफ आएगा, तो थोड़े को एफ ग्रेटर दैन डी आएगा। हुण देखो जरा की कह रहा है कि भी जे ग्रेटर दैन इज इक्वल टू एफ आएगा, जे इत्थे है तो एफ इत्थे है, तो एफ दे बराबर आ सकता है। हुण जे ते दोनों बराबर नहीं हो सकते, इट मीनस पहली गल तो बिल्कुल तुहाडी रॉन्ग है। दूजी गल कहंदा भी क्यू ग्रेटर दैन इज इक्वल टू डी हो सकता है, तो दूजी गल भी बिल्कुल गलत है। मेरी तो दोनों गल्लां बिल्कुल पसंद नहीं है, इस करके मैं तो तुहानूं दोनों चीज़ां ही कहांगा। कहंदा कि बोथ द कंक्लूजन आर करैक्ट, दोनों कंक्लूजन ने इस दे अकॉर्डिंग की कह रहा, करैक्ट कह रहा है। ठीक है, देखो हुण किवें कह रहा, इत्थे तो इहने डी देता, थोड़ा जिहा टाइपिंग मिसप्रिंट है, इत्थे देखो दो बोथ द कंक्लूजन आर करैक्ट देता, बल्कि इनकरैक्ट देना चाहिए सीगा। तो डी दे विच तुहानूं की दिता है कि नीदर फर्स्ट और नॉर ही सैकेंड वैलिड है, भी ना तो पहला सही तो ना ही दूजा सही। मैं तुहानूं कहा ना भी दोनों ही गलत, इट मीनस है डी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, समझ पाए हो। चलिए उस तो बाद आता है नैक्सट है पॉइंटिंग टू द, एक केदार वाली गल है, तो ये सवाल भी इस तरीके नाल सीगा, जरा मैं इस ते भी एक्सप्लेनेशन करना चाहना है भी वीना नाम की एक आ देखो वीना है, वीना कौन है, नाम पढ़ते सर मैनूं पता लग रहा है कि सी इज़ ए फीमेल। ठीक है, वीना की कहती है, मैं तुहानूं दस्सिया सी भी इत्थे इज़ आ गया और इत्थे ऑफ आ गया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ सवालों तो बैक चले जाओ, कहने वाले परसन ਨੂੰ मुख रखो। वीना की कहती है, वीना कहती है कि हिज मदर्स ब्रदर, उसकी माँ का भाई, इज द फादर ऑफ माई सन नितिन। की दी गल हो रही है, माई सन नितिन, तो यदा सन आएगा, सन हमेशा माँ प्यो तो हेठां बैठेगा, आ बैठा नितिन यदा सन है। देखो ये कित्थे गल आ रही सी, ऑफ माई सन नितिन, फिर उस तो पहला की आ रहा है ऑफ द फादर, फादर की की गल आ रही है, इस नितिन के फादर की गल आ रही है। आ चक्को जी नितिन का फादर हो गया, इत्थे जिहदा नाम कुछ भी ला दो, महेंद्र प्रपात जो भी ला दो, फिर आ गया इज द ब्रदर। देखो जरा सवाल समझो, जरा इत्थे थोड़े कोले गल खत्म हो जाती, इत्थे वापस तो यही परसन चलिया गया इहदे बारे। कहती वीना कहती है कि हिज मदर, की दी मदर गल हो रही है, इत्थे कोई लड़का है केदार नाम का, उन्होंने कह रही है कि उसकी माँ, ठीक है, कोई केदार नाम का बच्चा है जिहदी मैं गल एक केदार रख लेना है, इहदी माँ है, इहदी माँ नूं मैं इत्थे की करदा, जरा मैं थोड़ा जिहा स्टेटमेंट नूं चेंज कर लवां, क्योंकि मेरे तो एक लाइन ड्रॉप मिसटेक नाल गलत हो गई है, मैं उसनूं दुरुस्त करना चाहांगा। जरा इस नितिन के फादर की गल हो रही थी, तो फादर की माँ के इक्वल बैठेगा, इत्थे बैठेगा, ये इहदा फादर सीगा। ठीक है, हुण गल हो रही सी इत्थे केदार की, तो केदार नूं आपां इत्थे इंज करके बिठा दिंदे हैं, और ये गल कह रहे केदार की माँ, तो केदार की माँ होगी। हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन, मतलब इहदी माँ का जो भाई है वो मेरे पुत्र का प्यो है, तो मतलब हो गया इहदी माँ है तो इहदा भाई हो गया। तो तुसी सिंपल जी गल समझो भी थोड़ी ये वी नूं तुसी अपनी माँ समझो, महसूस करो भी तुसी अपने आप दे विच नितिन हो, वी कौन है, वी थोड़ी मदर है, तो ये थोड़ा कोई परसन, मतलब इहदा नाम कुछ भी नाम रख देना, थोड़ा फादर है, थोड़े फादर की भैन थोड़ी की लगेगी, थोड़ी भूआ लगेगी, और भूआ का पुत्र थोड़ा की लगेगा, कजन लगेगा। और यही जे मैं गल करना है भी इस केदार दे नाल वीना का किस रिश्ता बनेगा, तो वीना का केदार दे नाल की रिश्ता बनेगा, तो डेफिनेटली है अंग्रेजी भाषा दे विच मामी, भूआ, ताई, चाची नूं आपां आंट दे नाम तो पछाणदे हैं। ठीक है, आपां की कहने आंट कहने हैं, तो आंट कहने हैं, तो डेफिनेटली आंट के बिहाफ से वीना का इस दे नाल की रिश्ता बनेगा, एज ए आपां कह सकते हैं नेफ्यू बनेगा, या की रिश्ता बनेगा तुसी कह दोगे भतीजे का रिश्ता बनेगा, क्योंकि जो रिलेशन से इत्थे नेफ्यू है वही रिलेशन से इत्थे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके नाल बननी सी जो बिल्कुल सही है।
इस तो बाद आ जाता दूजा क्वेश्चन भी तुसीं खुद सारे जने सॉल्व करके मैंने कमेंट बॉक्स में दसना है, मतलब चैट बॉक्स में दसना है, ठीक है सारे जने ने बिल्कुल। और मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज देखांगा कि किन्ने बच्चे तुसीं वाकई ही थोड़े टीचर नूं प्यार करदे हो कि साडे लई मेहनत करदा कोई परसन, तो असीं उस गल दा रिप्लाई करना है। देखो जी सब तो गल आउंदी है प्यारी और बड़ी खूबसूरत, अज आपां पाठ करन जा रहे हैं सिलोलिज्म। देखो सिलोजिम्स की है, सिलोलिज्म्स पार्ट एक इहो जिहा है जिसनों आपां बोलचाल दी भाषा च सिलोग कहने हैं। सिलोग एक इहो जिहा मैं कहना चंद्रमुख पार्ट हुंदा है कि जिस दे सवाल सानू बेसिक स्तर तो मैं करावांगा। मेरा हमेशा परपज हुंदा है मैं ग्राउंड लैवल तो उठांगा तो मैं इस तरह ग्राफ के बिहाव से चलांगा और मैं तुहानू एडवांस लैवल तक के सवाल करावांगा, ठीक है जी। चलो सब तो पहला गल करते हैं सिलोग हुंदा की है। ये कहता भी सिलोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसते जनरली 5 तो 6 क्वेश्चन थोनों हर किसी एग्जाम दे विच पूछे जाते हैं और इस दे सॉल्व करने का नज़रिया वैन डायग्राम भी हो सकता है, क्योंकि वैन डायग्राम तरह ही आप इसनों की करते हैं डिजाइन करते हैं। हुण गल आउंदी है कि ये कहता कंसीडर स्टेटमेंट्स बी ऑलवेज ट्रूथ, स्टेटमेंट्स आर यूनीवर्सल ट्रूथ। देखो कुछ चीज़ां होंदियां हैं कि जो बिल्कुल यूनीवर्सल ट्रूथ ते एक्सैप्ट होंदियां, जिस दी मैं देसी दवाई देवांगा थोनों बहुत ही शानदार पुड़ी देवांगा। ये पुड़ी बहुत तकड़ी है, नागमणी दे नाल इस पुड़ी नूं बिल्कुल बनाया गया है थोड़े लिए, और तुसी दुध नाल पानी नाल जिवें मर्जी लै लिओ, थोनों कदे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोरोना तुहाडे लागे नहीं आएगा। ये सवाल खास तौर पर करोना का मतलब हैगा इत्थे कि मैं करोना लिए वो खैर WHO नूं तां मैं चैलेंज नहीं कर रहा, करोना का मतलब इत्थे अपने सिर्फ और सिर्फ परपज है सवाल का। देखो ये कहता दूजा सवाल है मस्ट अंडरस्टैंड देयर स्टेटमेंट एंड आफ्टर दैट द कंसीडर देयर कंक्लूजन। देखो प्यारे बच्चों 4 चीज़ां समझ लैनियां। सानू एक तो आएगा कि ऑल पेन आर, नो पेन आर एंड सम बुक आर एंड इदां इदां दा करके। इसलिए तुसी समझ लो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आउंदे है या तो ऑल दे आउंदे है या सानू दूसरे आउणगे नो वाले आउणगे। तीजा स्टेटमेंट आएगा सानू सम वाला आएगा, फिर सानू आएगा कि सम पार्ट है तो सम पार्ट नहीं है। देखो हुण इस चीज़ दे विच मैं गल कह सकदा है कि देखो आ मैं कह सकदा मेरा घर है और एक मैं कह सकदा मेरे ब्रदर का घर है, तो मेरे घर तो मेरे ब्रदर के घर दे थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो मैं गल कहां कि मेरे ब्रदर के घर दे मेरा हिस्सा भी है, मैं गल कह सकदा ना। देखो जी मैं गल इसनूं इस तरीके नाल भी कह सकदा है कि मेरे ब्रदर के घर दे मेरा भी हिस्सा है, तो मेरा ब्रदर भी कह सकता है कि भाई साहब के घर दे मेरा घर का हिस्सा भी है। तो मतलब ये की है कि ये चीज़ां ये भी कंसैप्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा तो यह भी कंसैप्ट लग जाएगा। तो दोनों चीज़ों अपने मुख तौर पर संभाल दे विच रखना है। इस तो बाद आ जाती नैक्सट गल, हुण इन्हां दे कनक्लूजन की गल करते हैं तो कहेगा तुहानूं कहंदा भी कि ऑल बुक आर पेन वाले होणगे, फिर नो बुक आर पेन, इस तरीके के थोनों कनक्लूजन 5 पूछे जाते हैं। पेपर दे विच थोनों मेनली 7 तरीके के सवाल दिते जाते हैं जिन्हां दे कनक्लूजन किवें किवें पुछदे हैं। या तो पूछेगा ऑल वाला, जरा गौर कर लो, या पूछेगा नो वाला, ठीक है, या पूछेगा सम वाला, या थोनों पूछेगा कि सम नॉट वाला, या पूछेगा ऑल पॉसिबिलिटी वाला, फिर ये नॉट पॉसिबिलिटी वाला, और फिर पूछेगा एटलीस्ट वाला। जिहड़ियां आ 3 चीज़ां आ, ये 3 चीज़ां खास तौर पर यह पूछियां जांदियां है। थोनों मैं दस दिना है कि बैंकिंग एग्जाम दे विच पूछियां जांदियां, बैंकिंग एग्जाम्स दे विच पूछियां जांदियां है, और खास तौर पर मैं गल करां तो PO स्टैंडर्ड के एग्जाम दे विच आउंदियां है, और क्लैरिकल दे विच भी किसी हद तक कोई एक दा क्वेश्चन आ जाए तो जरूरी है, लेकिन पंजाब गौरमेंट के एग्जाम्स दे विच इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपां करांगे। हुण ये कहंदा भी 3 पार्टां दे विच आपां स्लॉग नूं ट्रिकी बेस ते लवांगे। पॉजिटिव नूं हमेशा आपां की लेना है 100% लेना है, और नैगेटिव नूं हमेशा आपां 0% कंसीडर करना है। तो ये कहंदा पॉसिबली 50% हो सकता है तो 50% नहीं हो सकता, जो चीज़ हो सकती है तो नहीं भी हो सकती उसनूं आपां ईदर दे विच ले लांगे। हुण जरा मैं सवालों का सिलसिला शुरू करने तो पहला मैं थोनों लैके चलदा है पहली ट्रिक वाल। पहली पुड़ी थोड़े सामने खोल दिना मैं कि इन्हें पूछा है कि ऑल पेन आर कॉपी, दूसरा पूछेगा कि ऑल कॉपी आर पेंसिल, फिर पूछेगा तुहानू ऑल पेंसिल आर इन्हें पूछना है इंक, फिर इन्हें पूछना है कि ऑल इंक आर जिमें आप गल कर लीए कुछ भी लाइक मैं गल कर लेना है कि लिखा मैं हो जा जिस करके कि थोनू चलो मैं पेज लिख लेना है। आ लो जी, चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे जने समझ पा रहे इत्थों तक, ठीक है। मैं इस प्रक्रिया को लैके थोड़ा जिहा गांह तुरांगा, मैं इस तरीके नाल तुरांगा कि ऑल दी कंडीशन है। ट्रिक की कहती है कि तुसीं इस चीज़ को फॉलो करना है। सब तो पहला मैं चीज़ लई है सारे पेन, ये पेन है,
ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਤੋ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੀ ਫॉर ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਸੋਚੋ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ PN ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। PN ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸਿਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਪੈਨਸਿਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਇੰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਆ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, IN ਕੀ ਇੰਕ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਡਿਊ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੁਆਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਲੋਜਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ 50-50%। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ all pens are copy, all pens are copy, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ all pens are copies। ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ all copies are pencil। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ all pencils are pages। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਪੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ all copies are pencil। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। This is a pencil। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਨਸਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ all pencils are pages। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸਿਲਸ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਜਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਪੂਰੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਲੋਗ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਰੋ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸਟੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ all, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ sum। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, all, ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, sum। ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ all, ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ sum। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਜਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ all pen, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਨਸ ਬਣਾਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। all pens are pencil, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। all pens, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 2 4 ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਰੀ ਫॉरवर्ड। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਚਲਿਏ, ਸਾਰੇ 2 4 ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ 3 4 ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ 1 3 ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪੈਨਸਿਲਸ ਪੇਜਸ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਓਨਲੀ ਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਜਸ ਕਾਪੀ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਪੇਜਸ
ਕਾਪੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 100% ਸਰਟਨਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰਟਨਟੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਵਾਂਗਾ कि सिंगल बच्चा भी समझेगा करेगा। और एक चीज़ मैं जिक्र कर देवां, खास तौर पर जिहड़े भी तुहाडे चों कईयां कोले 2-2 कोर्स ने और तुसीं मेरे ख्याल याद आ गई मॉक टेस्ट सीरीज लई जिन्हां नूं भी यूजर नेम पासवर्ड दिता है और उधरों थोड़ा वीडियो कोर्स है, दोनों आईडीज सेम टाइम ओपन नहीं रखनी है। अगर कर रहे हो, कई बारी बहुत सारे बच्चे की करते हैं मिसयूज ते पहुंचते ने कि खुद तो वीडियो कोर्स देखते हैं और अपने रिलेटिव नूं कहंदे तुसीं मेरे वाले मॉक टेस्ट ला लो। तो इन केस थोड़ी आईडी ऑटोमैटिकली बाय द सिस्टम ब्लॉक कर दी जाएगी। आफ्टर दैट वी पीपल विल नॉट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, चलिए ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 4 ਨੰਬਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲ ਪਲੱਸ ਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਨਲੀ ਸਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇहद ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਬੁੱਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਕਾਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। सवाल कहता है कि सारियां बुक्स की बन चुकियां ने। मैं इत्थे इंज करके इसनूं बना लेना है, सारियां बुक्स पेन बन चुकी हैं, और मैं इदां करके लिखांगा सारे पेन कॉपी बन चुके हैं। तक अपने कोले सब तो पहली चीज़ विड्रॉ निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है कि ऑल बुक्स आर कॉपी। देखो सारियां बुक्स ने एक ही बन चुकी हैं कॉपी। तो इधरों पढ़ के इधर जा रहे हैं, बिल्कुल ऑल दी कंडीशन लगेगी 101%। ठीक है, समझ पा रहे हो सारे जने? बिल्कुल गुरु जी। अगला देखो, ऑल पेन आर कॉपी। देखो पेन 2 नंबर है, आप इसनूं 1 नंबर बना लीए, इसनूं 2 नंबर, इसनूं 3। तो मतलब सारे पेन कॉपी हैं भी 2 तो शुरू करके 3 बन जा रहे हैं। तो इस कंडीशन ते अपने कोल किहड़ी कंडीशन लगेगी? एक तो सम वाली लगेगी और दूसरी ऑल वाली लगेगी। तो मतलब ये भी बिल्कुल कंडीशन वेरीएबल करेगी। हुण आ जाओ, कुछ बुक्स पेन हैं तो कुछ बुक्स पेन हैं, बिल्कुल बिल्कुल कंडीशन लगेगी, ये भी आ गया। इस तो बाद आ जाओ नेक्स्ट अपने कोले। नेक्स्ट वी हैव ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम पेन्स आर बुक। देखो सम पेन्स आर बुक इत्थों पूछा गया तो इधर नूं आपां नूं इंज आ रहे हैं आपां। ठीक है, तो इत्थे अपनी कंडीशन ओनली सम वाली लगेगी। तो आई कैन से विच इज राइट ऑप्शन, सम कॉपी आर पेन। देखो सम कॉपी आर पेन तो बिल्कुल कॉपी तो पूछा, मतलब 3 तो पूछ के 2 ते आ रहे हैं, 3 तो पूछ के 2 ते आ रहे हैं। पिछों स्टार्ट करके गांह नूं आवांगे तो इत्थे ओनली सम दी कंडीशन वेरीएबल करेगी। इस तो बाद आ जाओ अगले ते, सम बुक आर कॉपी। सम बुक ए है तो कॉपी आया, 1 नंबर तो चल के 3 नंबर ते जावांगे तो आल भी हो सकता है तो सम भी हो सकता है। दोनों चो जिहड़ी चीज़ पूछी जाएगी उही थोड़ी कंडीशन बिल्कुल सच होएगी। तो आप गल कह सकते हैं सारियां गल्लां ये बिल्कुल तत्थां दे आधार ते सच हैं। समझ पाए हो? हुण आल पेन आर बुक। हुण आ जाओ, चलो जी, आल पेन, ये देखो ऑल पेन है ना, पेन आर बुक पिछों मतलब 2 नंबर तो चल के 1 नंबर ते की पूछ रहे? आल पूछ रहे। तो कदे भी इत्थे तुहानूं याद रखना भी गिल सर ने समझाया सी भी इदां कंडीशन नहीं होएगी। ऑल कॉपी आर पेन भी नहीं होएगा तो ऑल कॉपी आर बुक भी नहीं होएगा। ये गल 100% नैगेटिव है मैं तो 100% पॉजिटिव है। प्यारे बच्चों, इत्थे थोड़ी 100% ये कहानी इदां शूटेबल होएगी। दुनिया की कोई ताकत थोड़ा सवाल टस तो मस नहीं कर सकती। क्लीयर है सारे जने? सब हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ। थोड़ी जिम्मेदारी साडे हथ है एकदम पूर्ण तौर पर थोनों स्टेटमेंट ते लैके जाना। आ जाओ जी, हुण कंडीशन नंबर दूजी ते छापा मार लेने, धाड़ देने छापा मार देने आपां। सवाल नंबर दूजे ते है कि आल बुक्स, ए बुक्स ने, आल बुक्स आर की बन चुके हैं? सारियां बुक्स मेरे को की बन चुकी ने? पेन बन चुकी हैं। ये कहता कोई पेन कॉपी नहीं है। आ लो जी गुरु जी, ये कॉपी है, इन्हां दोनों का रिलेशन नहीं है, इन्हां दोनों का रिलेशन नहीं है। हुण सानूं पुछया जा रहा ने कि नो बुक इज कॉपी, कोई बुक कॉपी नहीं है। देखो जी, मैं अगर गल कहां तुहानूं समझ लो पहला बई, सारे जलंधर, सारे पटियाले नूं चंडीगढ़ क्या जाता है। हुण तुहानूं क्या जावे भी कोई चंडीगढ़ हिमाचल नहीं है, गल खत्म हो गई। इहदा मतलब है भी चंडीगढ़ तो हिमाचल का कोई लेना देना नहीं है, लेगा देगा नहीं है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ।
ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਕਾਪੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 50-50% ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। 50-50% ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ 50-50% ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਲ ਐਪਲਸ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਪਲਸ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੈਂਗੋ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਪਲਸ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਮੈਂਗੋ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮੈਂਗੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ORG, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਔਰੇਂਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਬੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈ ਟੌਪਿਕਸ ਪਲੀਜ਼, ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਆਓ ਜਰਾ। ਚਲਿਏ, ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਰਟਨਟੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲ ਐਪਲਸ ਆਰ ਮੈਂਗੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਨਕਲੂਜਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ 100% ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਬਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਈ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ A ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਔਰੇਂਜ ਹੈ। A ਫॉर ਐਪਲ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? मतलब कि मैं कहां कि नैगेटिव वाली कोई गल नहीं है और सानू पॉजिटिव गल दे के ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ 101% ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਟ ਆਲ ਦ ਮੈਂਗੋਜ਼ ਆਰ ਐਪਲ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਗੋ ਐਪਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਉਤਲੇ दोनों पार्ट जो मैं थोनू एग्जाम्पल समझाया सब नू दिमाग चो अलग कर दो। प्यारे विद्वान मित्रों जिन्ने भी गुरुजन हैं मैं थोनू समझाना चाहना है भी संभावना किसी भी चीज़ की हो सकती है। संभावना इदां भी हो सकती है कि साडे पंजाब दे विच हर बंदे कोले करोड़ करोड़ रुपया हो जाए। संभावना के केस के उपर सानू उपर साडे स्टेटमेंट दे विच ये स्टेटमेंट है किते भी कोई नैगेटिव तत्थ नहीं दिता गया, तो इस करके असीं इस नू पॉजिटिव मन्नांगे। बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है।
समझ गए ना मेरी गल? तुसी बस एक ख्याल रखो, मैं वापस तो इस चीज़ ते इन्ना फोकस करके पढ़ावांगा कि जो चीज़ है देखो ये इत्थे एप्पल है, मैं इत्थे बनाता, आ लो जी मैं इत्थे टी फॉर ट्री बनाता। जे तुहानू पूछा जाए कि इट इज पॉसीबल दैट कि ऑल मैंगोज बीकम ए ट्री, बिल्कुल हो सकता है बई, कोई दोराई नहीं है बई। जो पॉसीबल असी मन रहे हैं संभावना उत्थे होएगी। दूजा आ जाओ, इट इज पॉसीबल दैट सम ऑरेंज आर नॉट एप्पल, कि संभावना है कि कुछ ऑरेंज एप्पल नहीं हो सकते, बिल्कुल गल सच है बई, नहीं हो सकते। क्योंकि देखो अगर ये थोड़े भी पूछ सकता है कि पॉसीबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बई। अगर कुछ नहीं हो सकते तो इट मीनस कुछ हो सकते हैं। इस तो बाद अगले चा जाओ कि इट इज पॉसीबल दैट ऑल द एप्पल्स आर मैंगो, कि ये संभावना है कि सारे एप्पल्स है ए वाले मैंगो है। जे मैं ऊपर वाले कंडीशन च लेंदा, स्टेटमेंट नंबर पहले च लेंदा तब तो सही सी। हुण ये पॉसीबल, देखो अगर मैं ये चीज़ हटा दा, अगर मैं इन्हें शुरू दे विच आ चीज़ हटा देवां, तुसीं नोट रखो, ये चीज़ हटा के मैं पूछां कि ऑल एप्पल्स आर मैंगो, 100% सच है गल। अगर तुहानू आ रहा कि इट इज पॉसीबल दैट ऑल द मैंगोज आर, तद इहनू मैं की मनांगा, गलत मनांगा। संभावना दी इत्थे कंडीशन नहीं है, ये सच है, इस करके मैं ऑप्शन नंबर तीजे नू गलत साबित करांगा। समझ गए मैं की कह रहा कि अगर शुरू दे ये शब्दावली इन्नी ना हुंदी, अगर इन्नी लाइन ना हुंदी, तो ऑल एप्पल्स आर मैंगो 100% सच हुंदा। और फिर सानू अगर ये हुंदा कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, बिल्कुल गलत हुंदा। परंतु इसने इट इज पॉसीबल संभावना देती भी कि इदा लगता थोनू, नहीं जी बिल्कुल नहीं हो सकता, आप इसनू हटावांगे नहीं, साडे तत्थां दे आधार ते गल बिल्कुल सही है। चलो जी चौथे ते आ जाओ, इट इज पॉसीबल दैट सम ऑरेंज आर एप्पल, सम ऑरेंज आर एप्पल, इट इज पॉसीबल, बिल्कुल पॉसीबल है, बिल्कुल पॉसीबल है जी, पॉसीबल कुछ भी हो सकता है। समझ गए? तो ये सब तो बेस्ट तरीका है। हुण आपां करदे हां क्वेश्चन ते उत्थे धड़ाधड़ तुहाडे डाउट सारे भी मैं क्लीयर करदा चल। हुण आ जाओ तुसीं नैक्सट कंसैप्ट दे विच, जिथे कि आपां नूं ईदर वाली चूज करनी हुंदी है। सानू कई बारी ऑप्शन नंबर ईदर दिता हुंदा, जिवें कि इन्हें देता कि सम एप्पल्स, ए एप्पल्स है ऑरेंज बन चुके हैं, लाइक सम एप्पल्स आप इस करके लिखांगे इदा करके ORA। नो ऑरेंज का कोई रिश्ता किदे नाल मैंगो नाल नहीं है, ठीक है जी, रिश्ता मतलब मैंगो नाल नहीं है। इस कंडीशन ते जरा गौर करो, देखो इस कंडीशन ते गौर करो। मैं अर्लीयर एक तुहानू क्वेश्चन कराया सीगा कि मैं कहदा कि सारे A की बन चुके हैं, B बन चुके हैं, तो किसी B नाल C का कोई रिश्ता नहीं है। इट मीनस है इस A नाल भी रिश्ता पाउण दे बहुत घट चांसेस ने, लेकिन कई बार ओनली या कोई इहो जिहा जिवें बैंक PO पेपर दे विच पॉसीबिलिटी कोई बन सकती है। लेकिन इस केस ते आ जाओ, इस सवाल का और इस सवाल का डिफरेंस बहुत बड़ा है। इस सवाल नूं आपां इस सवाल के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। हुण देखो इन्हें क्या है कि ऑरेंज, नो ऑरेंज मैंगो, कोई ऑरेंज मैंगो नहीं है, परंतु इस कंडीशन ते मैंगो का ते ए दा कुछ ना कुछ रिश्ता बन सकता है। इन्हां दा रिश्ता की है, इन्हां दा रिश्ता अगर डायरैक्ट नहीं है तो इनडायरैक्ट कोई ना कोई हैगा आ। सम एप्पल्स आर मैंगो, देखो हुण पे सम एप्पल्स है ते मैंगो ए है, सम एप्पल्स आर मैंगो, तो इस कंडीशन ते सम एप्पल्स आर मैंगो। हुण सानू की करेगा, इको स्टेटमेंट रिवर्स करके पूछेगा। जरा गौर करना, इको स्टेटमेंट की करके पूछेगा, रिवर्स करके पूछेगा। जिमें सम एप्पल्स आर मैंगो, अगर मैं इत्थे कह दा, क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं है, मैं 100% इस चीज़ ते श्योर नहीं है भी ये हो भी सकता है ते नहीं भी हो सकता, इस गल ते जा रहा ना मैं। दूजा कह रहा है कि नो एप्पल आर मैंगो, भाई अगर एक पासे कह रहा है कि सम एप्पल आर मैंगो और दूजे पासे कह रहा है कि कोई एप्पल मैंगो नहीं है, तो सानू इन्हें चक्करां च पाता हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। इस कंडीशन दे विच एक देसी दवाई है, नोट कर लो सारे बच्चे। कंप्लीमेंटरी पेयर दे विच ईदर और दा टाइप क्वेश्चन कित्थे कंसीडर करेगा, ये उत्थे कंसीडर करेगा जदों सानू इको कंक्लूजन दे विच की आवे, सम अते नो वाला आवे। सम ते नो वाला आवे, इत्थे साडे कोले की है कि ईदर वाला कंसैप्ट क्लीयर काम करेगा। दूसरा आ गया कि ऑल अते सम नोट है, इस कंडीशन दे विच भी किहदा काम करेगा, ईदर वाला कंसैप्ट आएगा। ते सम अते सम नोट वाले दे विच भी आएगा। देखो जिक्र जिवें इत्थे साडे कोले की है कि पहला साडे कोले की है सम है और इत्थे साडे कोले नो है, तो इत्थे आपां किस ते जावांगे, इस कंडीशन जदों कन्फ्यूजन होवे उदों आपां ईदर वाले कंडीशन ते जावांगे। ये गल नोट कर लो। लेकिन इस तो भी सुपर गल नोट करनी है कि ये कंडीशन अप्लाइड उदों ही होएगी जदों दोनों कनक्लूजन या तो की होण गलत होण या दोनों कनक्लूजन की होण कन्फ्यूजन होण।
दोनों सही है तो इधर नहीं लगेगा, दोनों गलत जा रहे हैं, दोनों ही कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो इस कंडीशन ते थोड़े कोले की लग जाएगा, इधर लग जाएगा। क्लीयर है सब जने दसो, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं की क्या कि जदों साडे कोल देखो शॉर्टकट तुसीं ए नोट कर लो, थोनू दोआं दे विच पुछया जा रहा है, सम ते नो दे विच पुछया जा रहा है भी कुछ एप्पल हो सकते हैं, फिर वो कहता बई कुछ भी नहीं हो सकते, मतलब कोई एप्पल का कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, तो इत्थे आपां एक पासे मन्नांगे ऊपर भी हाँ है, दूजे पासे आपां कह रहे हैं नहीं है, तो मतलब जिथे कि या तो दोनों गलत जा रहे हैं या दोनों की हो रहे हैं तुहाडे कोले ठीक हो रहे हैं, लाइक माफ करना कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो आपां इत्थे ईदर दा केस लावांगे। क्लीयर है, हुण आपां वधदे हैं नैक्सट टाइप। हुण इत्थे डाउट होर कढ दांगे तुहाडे, ऑल जिवें ने पूछा कि ऑल एप्पल्स आर मैंगो, मैं इत्थे कहांगा कि ये सारे एप्पल्स की बन चुके ने, मैंगो बन चुके, सारे एप्पल्स की बन चुके, मैंगो बन चुके। हुण वो कहंदा भी सम मैंगोज आर की है ऑरेंज है, आलो जी की बन गया थोड़े कोले ऑरेंज है। तो मैं थोनू इत्थे देखो ये सेम थोनू फिगर पॉसीबल च कराया सी, ते पॉसीबल दी कंडीशन इस कंडीशन च हुण ईदर दी कंडीशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोनू हर एक चीज़ पहला कंसैप्ट क्लीयर करांगे फिर क्वेश्चंस क्लीयर करांगे। जिवें देखो हुण देखो इन्हें की पूछा है, अपने को आ गया कि ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, सारे मैंगोज पहली कंडीशन है, कंक्लूजन नंबर पहला है अपने को, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंज बिल्कुल गलत है, ऑल दी कंडीशन बिल्कुल नहीं होएगी। नेक्स्ट हो गया कि सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ एप्पल्स हैं, कुछ एप्पल्स वो ऑरेंज नहीं है, इहदा मतलब कुछ नहीं है तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन असी तो श्योर नहीं है ना, असी तो इस चीज़ ते श्योर नहीं है, इस करके आपां इस नूं भी की करांगे कट करांगे। ये कहंदा हेयर बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग एंड इट इज़ पेयर ऑफ ऑल, कदा भी ऑल दा ते सम नोट दा है, ऑल दा ते सम नोट दा, सो ईदर और विल बी अप्लाइड। हुण इस कंडीशन ते ईदर ते और दी कंडीशन अप्लाई होएगी, इस कंडीशन ते ईदर ते और दी कंडीशन अप्लाई होएगी। क्लीयर समझ रहे हो ना, ये चीज़ां तुसीं नोट कर लो। हुण आ जाओ अगला अगर मैं पूछा जावां कि सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, बई सम एप्पल्स है आर नॉट ऑरेंज, बई कुछ एप्पल्स है जेड़े कि ऑरेंज नहीं है, कुछ एप्पल्स ऑरेंज नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी थोड़ी तत्थां दे आधार ते गलत है, गलत है। ठीक है, दूसरी आ गई कि सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, भाई सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज मतलब कि सेम ही स्टेटमेंट सानू पूछ लिया, तो इत्थे साडे कोल की आ गया कि सम आ गया और साडे कोल नॉट आ गया। ठीक है, तो ये सानू कंडीशन कह रहा है कि बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग द पेयर ऑफ, इत्थे देखो इन्हें आ नॉट नहीं पूछना सी, सम एप्पल्स आर ऑरेंज एंड सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, तो दोनों ही गलत होणगे, सम अते सम नॉट दी कंडीशन दे विच भी ईदर अप्लाई होएगा। हुण देखो अगली कंडीशन च है सम एप्पल्स आर ऑरेंज, देखो सम एप्पल्स ते ऑरेंज का रिलेशन पूछ रहा है, फिर सानू कह रहा है कि सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज, तो इस कंडीशन ते भी आप कह सकते हैं सम अते सम नॉट की कंडीशन होएगी, तो इस कंडीशन ते ईदर ते और वाली कंडीशन अप्लाई होएगी। मैनू लगता है थोनू क्लीयर हो गया होएगा, कोई बिल्कुल किसी बच्चे ने प्रभावित नहीं होना किसी भी इदां दे विचलित करने वाले स्टेटमेंट ते। कोई भी सैशनस इदां दा हुंदा है जिसका आपां कंसैप्ट सीखना है तो उसनू डेप्थ विच स्टडी करना भी लाजमी है। मैं हर पक्षों मेरे सैशन नू शुरू करन तो पहला मैं यही चाहांगा कि सारे कन्फ्यूजन कनक्लूजन जिन्ने भी ने तुहाडे सारे क्लीयर होने लाजमी है। तो तुहानू दिते गए उपर मेरे जो तुहानू एक शानदार तरीके दे मैं देसी दवाई दसी है कि इन्हां नू प्लीज़ रट्टा मार लो चाहे इन्हां नू याद कर लो। ठीक है, हुण अपने कोल एक कंडीशन आ जाती है अंत विच जो कि सानू बड़े एडवांस लैवल ते जो चीज़ पूछी जाती है। मैं बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ ते कन्फ्यूज नहीं करांगा। देखो पॉसिबिलिटी का केस हुंदा है जिहदे कि साडे कोल 100% सच ते 100% नहीं हुंदा। ये कहंदा कि सारे एप्पल्स है वो की ने मैंगो ने, ये कहंदा कुछ मैंगो ने जिहड़े ऑरेंज ने। पहला पूछ लिया कि सारे एप्पल्स है उन्हां दी संभावना है कि वो ऑरेंज बन सकते हैं, बिल्कुल गल सही है बई संभावना तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। गुरु जी संभावना किसी भी चीज़ की हो सकती है, अगर ये कहता भी दसो ये संभावना हो सकती है बई सारे एप्पल मैंगो है तो तद आप कहते नहीं गलत है, क्योंकि तो ऑलरेडी है बई कोई चीज़ ऑलरेडी है, ये चीज़ को आप किवें कह सकते हैं। तो गुरु जी अगर सानू एक नंबर तो जाके इस चीज़ से सानू पूछा जाता है कि बई सारे एप्पल्स ऑरेंज बनने की पॉसिबिलिटी लगती थोनू, बिल्कुल लगेगी। दूजी गल कहता है कि कोई संतरा कोई ऑरेंज आर मैंगो आर नॉट पॉसीबल, भी देखो ये दोनों दे कटिंग है,
है ना एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ 100% ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ % ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 40 ਤੋਂ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ 15 ਤੋਂ 20 ਸਿਲੌਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ठीक है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना मैं थोड़ा जिहा मेरे कंसैप्ट ਨੂੰ रिपीट करना चाहांगा कि सब तो पहले ऊपर वाले तत्थां ते तुसीं क्लीयर होवोगे ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ नहीं होना अगर साडे कोल ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਅਤੇ ਨੋ ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਦਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ all ਦਾ ਤੇ ਸਮ ਨੋਟ ਦਾ ਬਲਕਿ all ਸਮ ਨੋਟ ਦੇ ਈਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਮ ਤੇ ਸਮ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਦਰ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ if only conclusion first follow मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ A ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ B ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਈਦਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ C ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨੀਦਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ D ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ E ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ all courts ਸਾਰੇ courts ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ courts ਕੀ ਨੇ ਟੇਬਲ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ all courts ਟੇਬਲਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਲ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਓ ਆਲ ਟੇਬਲਸ ਆਰ ਬੱਸਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਇਹ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 2 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ 2 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ इधरों पुछ के इधर जावांगे तो साडे कोले सम दी कंडीशन प्लस आल दी कंडीशन कंसीडरेबल होएगी तो कंक्लूजन नंबर पहला 100% सच होएगा कंक्लूजन नंबर दूसरे ते है कि ऑल ट्रेन्स आर टेबल तो आ साडे कोले ट्रेन्स है ते आ साडे कोल टेबल है सारे 2 3 तो 2 हो सकते हैं तो वापस तो अगर आपां करांगे तो गुरु जी ऑल नहीं होएगा बल्कि ओनली सम होना सी तो दूजा गलत है इट मीनस है सिर्फ और सिर्फ पहली चीज़ करैक्ट आएगी आई थिंक थोनू समझ आ गया होएगा सबनू समझ आया कि नहीं है चलो अगले क्वेश्चन ते चलते हैं आपां क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 2 क्वेश्चन नंबर 2 ते है कि सम मोबाइल्स आर कंप्यूटर कुछ मोबाइल ने जिहड़े कि कंप्यूटर बन चुके ने COM ला लो कुछ कंप्यूटर्स है जिहड़े कि कैलकुलेटर बन चुके ने जिसनू आपां CAL ला लो सम कैलकुलेटर्स की बन चुके ने PHON फोन बन चुके ने कंसैप्ट ते फोकस करना है सारे बच्चों ने और इस चीज़ का वादा करना है कि जे थोनू वाकई ही कंसैप्ट साडे जिन्ने भी साडे सैशनस चल रहे हैं सुपर डुपर लग रहे हैं तो सब जने प्लीज़ वी बिग रिक्वेस्ट टू यू सबनू शेयर करोगे अपना एक्सपीरियंस कि वाकई ही यू पीपल आर वर्किंग थोनू मज़ा आ रहा है सैशनस दे विच some mobiles are computer and some computers are calculators some calculators are phones some phones are computer देखो कुछ फोन है ये कंप्यूटर हो सकते हैं इत्थे सानू पूछा जा रहा है ठीक है और दूजा पूछा इसने कि some computers are mobile जरा ये साडे कोले some computers are mobile की हो सकता है बिल्कुल थोड़े ते सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड ली जरा सोचो इन्हों प्यारे विद्वान सज्जनों देखो फोटो बल्कि फोन किथे है ते कंप्यूटर किथे है इस दे विच तां बिल्कुल भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा इट मीनस इहदी संभावना नहीं है जे हुंदा कि ऑल सम फोन्स आर कंप्यूटर इज ए पॉसीबल तो पॉसीबिलिटी हो सकती सी परंतु साडे कोले डायरैक्ट स्टेटमेंट है डायरैक्ट स्टेटमेंट दे विच इहदे आंसर होण दे बहुत ही घट चांसेस ने इस करके आपां इस नूं रिकमेंड नहीं करांगे इस तो बाद आ जाता है सम कंप्यूटर्स आर मोबाइल देखो सम कंप्यूटर आर मोबाइल दोनों के रिलेशन एक दूजे के नाल बिल्कुल हैं ठीक है सम कंप्यूटर आर मोबाइल तो सम मोबाइल आर कंप्यूटर इस करके मैं कहांगा कि इहदा दूजा सही है जे किसी का दूजा सही है तो मैं तुहानूं उपर की दस्सिया सी कि उहदा आंसर की हो जाएगा आंसर की हो जाएगा B फॉर बॉल वाला आंसर होएगा चलो जी स्टेटमेंट नंबर तीजे ते आ जाओ नैक्सट आ गया तुहाडे कोले कि ऑल स्पून SPs ऑल स्पूनस की बन चुके ने तुहाडे कोले बॉल्स बन चुके ने सम बाउल्स की बन चुके ने GLA बन चुके हैं एंड सम ग्लासेस आर की बन चुके ने साडे कोले प्लेट्स बन चुके ने ठीक है हुण आ गया कि सम ग्लासेस आर स्पून सम ग्लासेस इत्थे
ਤੇ ਸਪੂਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਮ ਗਲਾਸਸ ਆਰ ਸਪੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਮ ਗਲਾਸਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਸਪੂਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਗਲਾਸਸ ਇਹ ਹੈ, अगर मैं इसनों 1 नंबर बनावा, दिस इज 2 है, ये 3 है, ये 4 है। गुरु जी सम स्पून सम कुछ 1 3 हो सकते हैं या कुछ 3 1 हो सकते हैं, तो दिन रात का कोई नेड़े तेड़े का कोई रिश्ता नाता ही है नहीं बई, कोई रिश्ता नाता ही है नहीं साडा, तो इस करके आप कह ही नहीं सकते है ना। कोई किते घरों पार है तो आप एवं रिलेशन बना रहे हैं उहदे नाल। अगला आ गया कि सम प्लेट्स आर बॉल्स। देखो सम प्लेट्स इत्थे ने, ठीक है, कितने ने प्लेट्स 4 नंबर ने तो 2 नंबर, तो 4 नंबर तो 2 नंबर का रिलेशन पूछ रहा भी कुछ कुछ हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई इदां दी गल नहीं है, तो इसका मतलब भी गल हो ही नहीं सकती। जो कोई गल हो ही नहीं सकती तो आप इसनूं कवांगे नीदर वाला केस लगेगा इत्थे, कि ना तो साडे कोले नीदर वाले केस दे विच की है, नीदर वाले केस दे विच आप ये गल कह सकते हैं कि साडे कोले ना तो पहला है तो ना ही दूजा है। इट मीनस इसदा आंसर की आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्लियर है जी, क्लियर कट है। चलो अगले च आ जाओ, नैक्सट आ जाओ जो सम, हाँ अगले च आ गया कि अपने कोले वेलपर्स हो गए होए। आप इत्थे कंडीशन करांगे कि सम साडे कोले की ने EN लिख लो शॉर्ट दे विच, कुछ EN की ने साडे कोले PA ने, सम PA बॉक्सेस ने, कुछ PA की ने BOX बॉक्सेस ने, ते ऑल बॉक्सेस की बन चुके ने, सारे बॉक्सेस की ने साडे कोले पार्सल ने। हुण प्यारे बच्चों तुसी गल दसो मैनू, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना कंसैप्ट है कि सम पार्सल्स आर पॉकेट। देखो कुछ पार्सल्स ए पार्सल है और ए पॉकेट है, इस दे विच मैनू लगदा किते ना किते थोड़ा बहुता है, बिल्कुल सही है ना। तो ये देखो दोनों नू, क्योंकि मेरे को देखो समझो जरा, ये मेरे को की है पॉकेट इत्थे है तो पॉकेट नू पार्सल भी कट रहे हैं, तो इन्हां दे विच कुछ ना कुछ रिलेशन है जो बिल्कुल कंसीडरेबल होएगा। इस चीज़ ते आपां कहांगे भी बिल्कुल सही है, ये चीज़ हो सकती है। दूजा आ गया कि सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, सम पार्सल्स आर बॉक्सेस, बिल्कुल ये चीज़ भी हो सकती है। सम पार्सल्स आर बॉक्स, लेकिन सारे पार्सल बॉक्स नहीं है, सम पार्ट बिल्कुल होएगा। तो दोनों चीज़ां सही हैं, इस करके आप कहांगे कि ऑल आर करैक्ट का मतलब है इत्थे ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा भी पहला भी ठीक है तो दूजा भी ठीक है। हुण आ जाओ अज दा अंतिम क्वेश्चन अज दी सीरीज़ दा। सम कार्ड्स, कुछ कार्ड ने, ठीक है, ये कार्ड ने मेरे को, कुछ कार्ड ने मेरे को की बन चुके हैं, प्लास्टिक बन चुके हैं। सम प्लास्टिक्स मेरे को की बन चुके हैं, मैटल बन चुके हैं, तो सारे दे सारे मैटल्स की ने मेरे को की बन चुके हैं, प्लॉट बन चुके हैं। ये कहता भी सम प्लॉट आर कार्ड, सम प्लॉट इत्थे ते कार्ड इत्थे पॉसीबल है। तो नैक्सट आ गया साडे कोल नो पोर्ट इज ए, नो पोर्ट्स बल्कि ए नॉट ए प्लॉट। चलो प्लॉट है या पोर्ट्स है जो भी है, वट एवर आप इसनों प्लॉट समझ लेने हैं, तो अपने को पोर्ट्स है तो पोर्ट्स समझ लो, ठीक है। चलिए जी वेरी गुड। हाँ जी देखो जी, जे थोड़ी अखां दे विच चमक है, जे थोड़ी अखां दे विच नकल है, किसी सियाणे ने कहा है, ठीक है, भी नकल करो तो नकल दे विच अकल होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। नकल और अकल करनी, अगर आप कोई नकल मारनी तो अकल वरतो। जरा मैं थोड़ा दसिया सी भी कंडीशन इत्थे सम है, इत्थे आ चक्को जी, मैनू कुछ नहीं करना, चुपचाप करके प्यारे बच्चों इधर ठोक दो, ठोको इधर। हुण देखो किवें इन्हें पूछा भी सम पोर्ट आर कार्ड, सम पोर्ट आर कार्ड, कार्ड ते पोर्ट इत्थे है, मैं कह सकदा है भी सम पोर्ट आर कार्ड तो बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो ये पूछता फिर उस चीज़ को पूछ रहा है कि नो पोर्ट इज कार्ड, मतलब जदों भी किसी इको स्टेटमेंट नूं पॉसीबल दे विच पूछा है या हो भी सकता है कुछ पार्ट ते नहीं भी हो सकता, तो साडे दिमाग चो घंटी बज जानी चाहिए है कि सम ते नो वाली कंडीशन है, ठोको इधर, मतलब इहदा C नंबर आंसर आ जाएगा बई हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं सबनों जी। हुण मैं तुहानूं नैक्सट क्वेश्चन दे रहा 5, ये मैं तुहानूं टास्क दे रहा, मेरे इस सैशन नूं पॉज करो, रोको, इसनूं ठल्लो, इत्थे एक एक सवाल हल करना है और अपनी आत्मा तो पूछना है भी किहड़ा सवाल गलत है किहड़ा सही है। सम डेस्क्स आर टेंट्स, और सारे दे सारे सवाल फॉर यू है। प्लीज़ यदी वर्कशीट अलग तो मिलेगी, वो चीज़ां चलदियां रहणगीਆਂ। घट्टो घट्ट भी मैं तुहानूं इहदे 100 तो 150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करावांगा। और जिमें आप कह दें ना भी कोई भी थोड़े चों लगभग साडे ओवरऑल जिन्ने भी बैचेस ने घट्टो घट्ट भी 1000 तो ज़्यादा बच्चे ने इन्हां बैचेस दे विच, ठीक है। 4-6 बैचेस चल रहे हैं,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਤਰਕ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ।